Hey Sunny, happy International Men's Day to you, who had acknowledged the positive value which men bring to the world. But we have always listened a myth that a man's man is not emotional and they does not express affection. Is it? Men have been taught to not feel, express, show emotion, and least of all cry. Thanks to all the social stigma that has been built up around it for the centuries. But it's not true. Men have the right to express the feelings, the emotions, and the affection. They should be able to communicate it freely. Myself, Pragya Jain, welcomes you all to the Celebrating Manhood of our Series 1, initiated by She the Power and supported by iWipNet. So, this initiative was taken to discuss upon the positive male role models and raise awareness of men's well-being. So today we have Sunny Kabrawala, who is the founder at Star and director at Avkashiyan Private Limited and co-team member at Startup Weekend Surat. He had been a space enthusiast who aims to make space emissions commercial for everyone. Since the age of 19 years, he started a rocket club named Space Technology and Aeronautical Rocketry with an objective to build and teach model rocketry in India. He has delivered various talks based on entrepreneurship on various platforms like TEDx Surat, Josh Talks, E-Conclaves, Orcas Talks, and Yugantar. So before carrying forward to the interview series, we have Ms. Shruti over here, who is the co-founder of iWipman Digital Marketing Services and Charismatic Academy based in Surat. Being a female entrepreneur, she always believed in empowering young female students of the college. So she started a community called She the Power, in which community runs regular online talk shows and webinars inviting the female working professionals from different parts of the country. Being a leader of the community, she always inspired and committed to grow for the underprivileged girls. She had been the inspiration to many young girls as well as housewives. So let's start with our interview series of celebrating the manhood. Thank you. I hand over to Ms. Shruti Singh. Thank you so much, Pragya, for your wonderful introduction. Welcome, Sunny. Thank you so much, ma'am, for inviting me here, and thanks, Pragya, for the wonderful introduction. Pleasure, Sunny. Okay, Sunny. So, what does International Men's Day mean to you? So when we talk about any day, जब हम कोई भी day celebration की बात करते हैं, whether it is Children's Day, Women's Day, Engineers Day, Entrepreneurs Day, उनका एक purpose रहता है. The purpose is to remember जो भी contribution उस particular community ने दिया है world को. And similarly, Men's Day is about just remembering कि जो भी male community है, उन्होंने क्या contribute किया, उनका importance क्या है इस planet पर. Okay. So it's about you're talking कि जैसे हम Women's Day को celebrate करते हैं, Children's Day को celebrate करते हैं, तो Men's Day भी इतना ही important है, जो कि हम मेंस को इतना इम्पोर्टेंट दे सके. उनकी जो रोल है लाइफ में, उनका जो सोसाइटी में रोल है, तो वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है. True, yeah. So Sunny, you being a owner of the company, so आप अपने जो फीमेल्स टीम मेंबर्स हैं, तो वो टीम मेंबर्स को आप कैसे उनका करियर हेल्प करने में या करियर ग्रो करने में उनको हेल्प करते हैं? So a good question. हमारी टीम में जब भी कोई एक मेंबर ज्वाइन होता है, the first thing is we never differentiate whether कि वो मेल है या फीमेल है. Even in the terms of opportunities, एक जनरेशन था जहाँ पे people used to believe कि girls cannot pursue mechanical engineering. Girls mechanical engineering वाला काम नहीं कर सकते. उस वक्त भी वो चीज़ सही नहीं थी और आज भी वो सही नहीं है. हमारा एक ही फोकस रहता है कि गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज और उनको इक्वल ट्रेनिंग दी जाए. एंड दैट इज व्हाट वी डू एट स्टार. व्हेनेवर अ मेंबर जॉइन्स अ कंपनी, वही ट्रेनिंग जो मेल को दी जाती है, वही ट्रेनिंग हम फीमेल को भी देते हैं. एंड इट्स आवर
रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ के लिए भी फ्यूचर में दी जाए. So there were few departments जो हमारे कंपनी में थे that were led by girls. So like we have to see people as humans first, and then all of the differences come into the picture. So that is one principle that we follow in our company. So सनी, आप ये कहना चाहते हैं being a leader of the company, आपने जो लोगों की एक मिथ होती है ना कि गर्ल्स दे कैन नॉट गो टू स्पेस और ये सब रॉकेट बनाना ये सब काम उनका नहीं है. तो यू बीइंग अ लीडर ऑफ दिस कंपनी, आपने ये मिथ तोड़ा है और यू आर मोटिवेटिंग द गर्ल्स टू कम विद न्यू आइडियाज एंड लीड द टीम. Yes, जैसे मैंने बताया कि इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज अगर हम बात करें तो इवन स्पेस स्टार्टअप्स की हम बात करें इंडिया में, there are many space startups which are now led by girls, and not only in India. अभी दुबई में एक इवेंट हुआ था जहाँ पे स्पेस स्टार्टअप्स वर इनवाइटेड, एंड उस इवेंट में भी अगर अब हम देखेंगे तो गर्ल्स का भी कंट्रीब्यूशन एंड पार्टिसिपेशन दोनों काफी एक्टिवली था. सो वो जो डिफरेंस पहले माना जाता था, जो एक मिथ था, आई थिंक दैट मिथ इज ब्रोकन नाउ. इट्स नो मोर रियलिटी, एंड नाउ it's possible to see both like male and female on the same platform working together for a cause. Sunny, to happy to listen these things from you कि आप एक मेल होकर भी लड़कियों के लिए इतना सोचते हो, जो कि एक होता है कि लोग कहते हैं कि अभी भी मेल डोमिनेंट कंट्री है या मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो वहां पे आप जैसे भी लोग हैं जो ये सोचते हैं एंड यू आर मोटिवेटिंग द पीपल टू गो अहेड. सो सनी, why do men often find it difficult to communicate its feelings and its changing? First thing, it depends on the surrounding, the environment, and the second is their the parenting that they got. Usually होता क्या है कि जब हम छोटे होते हैं तब ये difference create किया जाता है कि boys बहुत strong होते हैं, girls उतनी strong नहीं होती है, and ये डिफरेंस जब हम बड़े होते हैं तब तक हमारे दिमाग में रहता है, एंड ये चीज और स्ट्रांग हो जाती है जब वो जिस एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हो या अगर यूनिवर्सिटी में हो तो यूनिवर्सिटी में भी अगर वो एनवायरनमेंट उनको मिले जहाँ पे ये ही सेम मैसेज उनको दिया जाए तो ये फीलिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है. जिससे क्या होता है कि फ्यूचर में अगर कोई मेल कोई भी प्रॉब्लम से पास हो रहा हो या फिर उनको कोई डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है ये चीज किसी से शेयर करना, बिकॉज उनको ये लगता है कि अगर मैंने शेयर किया और इफ आई क्राई पीपल विल कंसिडर मी वीक. एंड देयर आर फ्यू स्लैंग्स व्हिच आर गिवन, स्पेशली हमारे कंट्री में कुछ स्लैंग्स है जो यूज किया जाता है फॉर मेल्स व्हेन दे क्राई. सो with that fear they don't cry in front of people. They do cry but not in front of people, most of them. And second is they feel uncomfortable a lot of time. ठीक है, जहाँ पे कोई उनको बोलते हैं कि यार ठीक है यार छोटी सी बात है, लड़कियों की तरह क्यों रोते हो. तो दिस लड़कियों की तरह क्यों रोते हो, ये बचपन में अगर पेरेंट्स ऐसे ही बोल जाते पर उनको ये नहीं पता कि एक बच्चे का माइंड इज लाइक अ ब्लैंक पेज. हम उसके ऊपर चीजें लिखते हैं एंड हम वो डायरेक्टली नहीं लिखते, हम इनडायरेक्टली लिखते हैं थ्रू आवर एक्शंस और थ्रू आवर वर्ड्स जो हम सबकॉन्शियसली डिलीवर करते हैं. तो आई थिंक दिस इज वन रीजन व्हिच आई फाइंड वेरी स्ट्रांगली कि आज कोई भी मेल उनको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इतनी आसानी से अपने इमोशंस लोगों के सामने नहीं रखते. करेक्ट सनी, मतलब लोग ये जो कहते हैं सोसाइटी में बचपन से लड़कों मेल चाइल्ड के दिमाग में डाला जाता है कि अगर आप रो रहे हो तो आप लड़कियों की तरह हो. तो दिस इज द ओनली मीन्स फॉर दैट. शायद ये हो सकता है कि एंगर एक ऐसा है इमोशन जो मैन दिखा सकते हैं और इसी की वजह से अगर और पॉजिटिवली और कोई भी इमोशंस मैन बाहर नहीं निकाल सकते तो हो सकता है कि एंगर ही एक जरिया है. सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू द सोसाइटी कि बच्चों को पहले से ये या लड़कों को पहले से ये मत डाल दो कि अगर आप रो रहे हो तो आप लड़कियां हो. करेक्ट. एंड आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस कि जब हम ये बोलते हैं कि लड़कियों की तरह रोते हैं तो ये लड़कियों के दिमाग में भी फिर आ जाता है कि वी आर वीक, एंड जब हम कोई प्रॉब्लम में होते हैं तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, हमें सिर्फ रोना है एंड पीपल वुड हेल्प अस आउट. बट आई हैव सीन दिस कि आई हैव सीन बॉयज जिनको कोई प्रॉब्लम होता है वो रोते हैं, एंड आई हैव सीन गर्ल्स की कुछ प्रॉब्लम होता है दे रिमेन वेरी स्ट्रांग, दे रिमेन काम, एंड उनको पता है कि कैसे डिसीजन लेना है और कैसे उसको ओवरकम करना है. सो
to be honest, LinkedIn and Instagram पे I'm connected to many female entrepreneurs जो solo founders है और जो company run करते हैं. And obviously, if you are an entrepreneur, you'll undergo a lot of troubles, problems, right? And they are doing it, they're solving it, right? So they're not crying. They're finding problems, they're solving it. So I think ये जो perspective है कि even girls सिर्फ रोते हैं या boys नहीं रोते, दोनों perspective बहुत गलत है. Everyone is human and everyone have emotions and everyone have right to express their emotions, whether it's a boy or it's a girl. One should understand कि emotions लड़कों को भी होते हैं और लड़कियों को भी होते हैं. True, yeah. So, Sunny, do you describe how your choices in life have led you where you are today? So, what are your struggles you faced to be here? I'll be very honest. Like when you opt for a field of entrepreneurship, struggles तो आने ही वाले. And no matter आप job करो, आप एक business करो, आप research projects करो, आप rockets बनाओ या आप normal कोई food business करो, struggles are everywhere. It's just कि आप decide करते हो कि आपको कौन से domain में struggle face करना काफी पसंद है. बचपन में जब मुझे स्पेस के बारे में पता चला पहली बार, तो it was my dream to become a space scientist and I wanted to be an aerospace engineer. So I experienced my first academic failure when I was in 9th. So 9th में I failed in mathematics. 10th में I got something around 60%. Now हम इस जनरेशन में जहाँ पे लोगों के 99.9% भी आते हैं and फिर भी वो रीचेकिंग के लिए देते हैं, right? मेरा 60% I was nowhere in competition. 11th में I failed in something in physics. So those were the initial days were very difficult for me because constantly my people around me were telling me that अच्छे मार्क्स आएंगे तो ही ये इंडस्ट्री में आ पाएंगे. फर्स्ट थिंग. सेकंड, आई नेवर डिड जॉब इन माय लाइफ और मुझे कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस भी नहीं था. तो सेकंड चीज ये थी कि जब मैंने सोचा कि एक स्टार्टअप में कन्वर्ट करना है इस क्लब को, तो एक और चैलेंज आया जहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे. आई टेल आउट ऑफ 100 देयर वर ओनली 1 or 2 पीपल. आई एम लकी कि मुझे इतने सारे लोगों ने पुल बैक नहीं किया था. उन्होंने बोला था कि बिजनेस इज वेरी डिफिकल्ट एंड इंजीनियर्स बिजनेस को अच्छा नहीं मानते, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स. तो दे सेड कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया, उसके बाद अब बिजनेस ही करना था, तो व्हाई इंजीनियरिंग, बीबीए या एमबीए कर लेते, राइट? सो ये और माइंडसेट था. बट आई थिंक सूरत स्टार्टअप इकोसिस्टम 2015 में शुरू हुआ एंड 2015, 16, 17 काफी इवेंट्स हुई जहाँ पे अमित सर है, भौतिक सर है, आनंद भाई, उनकी इवेंट्स में मैं जब जाता था, they used to motivate me and they used to always inspire me to do more. So these were the challenges I faced. Otherwise जो technical challenges होते हैं business में और product development में, वो तो challenges आने ही है, उसको I don't consider them challenges. They are just milestones that we achieve. So Sunny, you are correct. अगर engineering में जाना है या science line लेना है, इसका मतलब कि आपको 10th में 60% is not enough. It's a common phenomena. अगर 60% से आपने science ले लिया, मतलब आपके पास कुछ नहीं है. So उसके वो सारे सोच में भी अगर आपने ये चीज ऑब्वियसली जब सिलेक्ट की होगी तो आपके दिमाग में खुद का भी एक कॉन्फिडेंस, खुद को ही खड़ा करना पड़ा होगा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, अपने अपने सबके व्यूज होते हैं और नॉर्मली ये व्यूज हमेशा अगेंस्ट ही होते हैं. सो इट इज रियली डिफरेंट थिंग जो आपने सोची है, वो बहुत बड़ी बात है आपके पार्ट में. I would like to add to this. एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है यूएस में एंड इज वेरी वेल नोन इन आवर फील्ड सिंस इयर्स. लाइक बचपन में जब हम भी डिस्कवरी शोज देखते थे तो उनके ही शोज आते थे एंड इज स्टिल वेरी फेमस. इज अ पर्सन जिसने प्लूटो को सोलर सिस्टम से निकाल दिया. ही वाज इन अ कॉन्फ्रेंस एंड he asked a small girl, a little girl, what do you want to become when you grow up? तो लड़की ने बोला कि I want to become a scientist when I grow up. Then he replied, one good thing about being a scientist is you don't need to grow up, because छोटे बच्चे होते हैं, इनके माइंड में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं. And what is the purpose of a scientist? To just ask questions and to do research. And so kids are very similar to be a scientist. So your degrees, your grades, they never matter. The only thing that matter is your curiosity to learn and just ability to ask questions, as many questions as possible. Sunny, if you describe a man in 5 words, what would be? Okay, this is tough. I'll be saying calm, aggressive, okay, opposites,
Then strong, weak, again opposites. Okay, and the fifth one I would say humanity. That is, like why I'm sharing opposite words, just because you'll find men who are strong, you'll find men who are weak, and that's fine. You'll find some men, they are very calm. There's some who are very aggressive in the terms of doing business, aggressive in the term of speaking, anything. And the last one is humanity. That is, no matter whatever person you are, if this fifth thing is there, then you will be remembered by many people. So, Sari, as you told, he must be weak as well as, aggressive. The reason is, अगर बंदा weak है या कुछ काम नहीं कर रहा है, डर जाता है, तो लोगों को ये कहने में आता है कि ये डर जाता है. अगर aggressive है, मतलब men they cannot be weak, right? और उसके बाद अगर वो strong है या aggressive है, तो ये भी कहा जाता है यार बहुत ज्यादा aggressive है. उनको किसी के लिए कहने के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, वो किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता है. सो यू आर करेक्ट कि दोनों चीज आपके साथ, दोनों ऑपोजिट क्वालिटी शुड बी देयर इन द मेन. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन इन मेन्स लाइफ? Lot of time, we misunderstand education with literacy. That is what we always say. And with men ho ya women ho, again the same thing. Education is an equal right, जो दोनों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हम जो एजुकेशन को समझते हैं, एंड एटलीस्ट जो मैंने एक्सपीरियंस किया था मेरे स्कूल में, वो एक ही था कि टू मेमोराइज थिंग्स and to just put it down on a paper in examination and get good grades, and then you'll get a good job. The real term of education is कि first thing to learn how to think. एक इंसान को ये सीखना पड़ता है कि कैसे सोचना है. That is a very important skill. The second is to find out your passion. So education हमारा जो स्कूल के अंदर होता है, वहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं जो अलग अलग डोमेन्स के होते हैं. उसमें से अगर कोई चैप्टर बहुत अच्छे से हमें पसंद आ रहा है या उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है और हमें लगता है कि इसमें करियर बना सकते हैं, तो दैट इज अ राइट टाइम टू एक्चुअली होल्ड ऑन टू इट एंड ग्रो योर करियर. थर्ड इज टू लर्न डिसिप्लिन, बिकॉज एक चीज जो हम बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि अगर नो मैटर आप कितने भी नॉलेजेबल क्यों ना हो, कितना भी पैसा आपके पास क्यों ना हो, बट इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग योर एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स, आपको आपकी कंट्री छोड़ के कोई और कंट्री में छिपना पड़ेगा. इवन आफ्टर यू हैव 900 करोड़ रुपीज, आप अपनी कंट्री का फ्रीडम नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, राइट? सो दैट मनी इज ऑफ नो यूज. सो ये तीन चीज है जो इसके साथ जो बेसिक स्किल्स है, जो कम्युनिकेशन स्किल हो गया, नेटवर्किंग स्किल, जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, बट आई थिंक जैसे हम 11th-12th में आते हैं तो थोड़ा इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं, एंड देन वी लर्न दो स्किल्स. सो एजुकेशन, जो ये टर्म का जो एजुकेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एवरीवन ऑन दिस प्लैनेट हैव द राइट ऑफ गेटिंग दैट एजुकेशन, एंड बीइंग इनटू दैट इंडस्ट्री, वन दैट इज व्हाट आई बिलीव दैट when everyone on this planet would be educated in the real terms, the planet would be more beautiful. Very good definition given for this education. Yeah, correct. कि एजुकेशन एक वही नहीं होता कि एक चैप्टर्स होता है, बट डेफिनेटली ये सारी चीजों को मिला के एजुकेशन बनता है. पर फिर भी हमेशा, जैसे आप हो तो आपने जो एज यू सेड कि इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद ये कहने में आया कि इंजीनियर्स ये बिजनेस नहीं कर सकते, इंजीनियर्स दे आर नॉट बिजनेसमैन. बट आई कैन मेक आउट कि अगर आपको ये बिजनेस करना था तो शायद इसमें जो टेक्निकल नॉलेज लिया, देन ओनली यू कैन डू दिस बिजनेस, राइट? अगर कहीं मैंने सोचा होता बीइंग अ कॉमर्स पर्सन तो आई कैन नॉट डू दिस. सो आई थिंक कि एजुकेशन, कई बार यंगस्टर्स को, यंग बॉयज को ये सुना है हमेशा कि शादी तो करनी है, या फैमिली बिजनेस तो है. दिस इज व्हाट द थिंग इज. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? So coming to the topic, which is first thing is building career. So like हमारे कंट्री में एक चीज है अगेन कि when you are 22 or 23, especially गर्ल्स के लिए होता है कि जहाँ पे उनके मैरिज की बात शुरू हो जाती है, and they have a lot of pressure.
बट आई थिंक हमें ये समझना होगा कि जब तक हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे तब तक हम किसी और की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में नहीं ले पाएंगे. आई नो नाउ डेज बोथ आर अर्निंग, बट स्टिल still you and like both of them are responsibility for each other. So the first thing is हमें यही फोकस करना है कि हमें करियर कैसे हमारा डेवलप करना है. सेकंड थिंग बहुत स्ट्रांग होता है वो है कि फाइंडिंग अ पर्पस इन लाइफ. एंड आई ऑलवेज से दिस कि एक ऐसा ग्लोबल प्रॉब्लम या तो लोकल प्रॉब्लम, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाहते हो एंड आपने लोगों के लिए सॉल्व किया एंड पीपल वुड रिमेंबर इट फॉर यू. आई थिंक पैडमैन मूवी सबने देखी होगी. तो ही इज अ पर्सन हु सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम फॉर पीपल, राइट? And that is something I think male or female they have to find out and they have to do it in their life. And then I think there would be a right time. There is no certain age ki yahi age hai jahan pe you have to get married or you have to find a partner, right? So it's like 40 ho sakta hai, 50 years bhi ho sakta hai for some people. In fact, like a lot of people like बहुत jokes बनते हैं मेरे ऊपर, memes बनते हैं हमारे टीम में about marriage, but only one answer I give is like I share my birthday with Salman Khan, 27 December, and we have same initials as well, SK, right? So and even Ratan Tata was born on the very same day. So the chances of getting married is very less, right? So the only answer to the memes is this, right? So the thing is, one need to really focus on career and purpose, and I think then life would be really beautiful. You'll find someone in your journey then. करेक्टली सेड कि अगर हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक पूरी कंप्लीट नहीं कर पाते या हम पूरे तरह से अगर प्रॉपर अगर हम पूरी तरह से सही नहीं है या हम पूरी तरह से अपने स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते तब तक हम किसी की और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते. एंड अगर उससे पहले अगर आज के जमाने में कुछ पहले होता है तो इट मे क्रिएट प्रॉब्लम्स in the life or in the later stage. So Sunny, it was wonderful talking to you and wish you a very happy International Men's Day. Thank you so much, ma'am, for this, and I really enjoyed the interview. Thank you for giving me the opportunity and just looking forward to meeting you very soon. Same here, Sunny. Thank you so much once again.